Take a risk in your life. If you win, you can lead. If you lost, you can guide. It's a perspective of life. So you have to do something, because a person doing in the way of life, he will be success in the way of life. That's the reality of life. So let's begin, viewers. Today we discuss about Lev Vygotsky social culture theory that you saw in the screen. In the brief detail about Lev Vygotsky, about the born of 1896, and he died at the age of 37 because the tuberculosis, and there some theory have been undeveloped because he gone undoubtedly, and he last 10 years of his life become foundation research of cognitive development. जो that's we discussed previously about Jean Piaget theory that link with Lev Vygotsky social culture theory, because Lev Vygotsky have been developed in the influence of Jean Piaget. वाइगॉस्की जो थे वो जीन पियाजे के थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से काफ़ी प्रभावित हुए थे। उन्हीं के थ्योरी के बाद उन्होंने अपना सोशल कल्चर थ्योरी दिया था, जो कि काफ़ी हद तक पियाजे के थ्योरी से इंटरलिंकेट होता है, बट इनका जो थ्योरी है वो सोशल कल्चर पे बेस्ड होता है। किस तरीके से बच्चा इंडिविजुअली अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने सामाजिक संस्कृति के थ्रू नॉलेज को गेन करता है। Now viewers, we discuss about social culture theory in perspective. Lev Vygotsky theory, there is first point is, now we discuss about Vygotsky theory of social development. The first point is social interaction is the major factor that leads to cognitive development in children. Like as in the way of Vygotsky theory, he influenced that social interaction is a major part of cognitive development. And the second point is link between communication and internal thought. Like as whenever a child think in way of personally, in the way of internal thought, it help the way of their cognitive development. जैसा कि हम जानते भी हैं, वाइगॉस्की साहब ने जैसा बताया था, हमारे संज्ञानात्मक विकास में हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य काफ़ी हद तक सहायक होता है, और हमारे संप्रेषण, हमारे इनर थाउट जो होते हैं वो काफ़ी हद तक सोशल कल्चर थ्योरी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि वाइगॉस्की थ्योरी में दर्शाया गया है। नाउ डिस्कस अबाउट एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन which influenced by Vygotsky. Vygotsky have been discovered. There are 4 significant points in born with children. The first point is attention, and the second one is sensation, and third one is perception, and fourth one is memory. There are 4 basic points which child have been occur in inborn period of time that have been the major point of children growing up in the way of sensory motor stage to adulthood. It's influence child all overall holistic way of development according to Vygotsky theory of social culture theory. Now we discuss about important principle of Vygotsky work. Vygotsky साहब जो थे वो इन 3 प्रिंसिपल पे काफ़ी वर्क किए थे, और ये 3 प्रिंसिपल जो है Vygotsky थ्योरी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो कि है फर्स्ट जो है मोर नॉलेजेबल अदर, इसको शॉर्ट में कहते हैं MKO। ये वो होता है जब कोई बच्चा होता है और जब उसे कोई हम आउटर नॉलेज देते हैं तो क्या होता है, मोर नॉलेजेबल देन अदर हो, जिसको हम जो है ब्रीफली आगे पढ़ेंगे भी। दूसरा है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमिकल डेवलपमेंट, यानी कोई बच्चा है अगर उसको कुछ आता है, जैसे उसको किसी का नाम बोलने आता है लेकिन उसे लिखने नहीं आता है, तो कैसे लिखेगा, वो स्कैफोल्डिंग के हेल्प से लिखेगा। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग वो होता है जो कि ZPD यानी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमिकल डेवलपमेंट और मोर नॉलेजेबल अदर के बीच में क्या करता है, एक इंटरलिंक का काम करता है। और तीसरा क्या हो गया, लैंग्वेज, जिसको हम लोग अभी ब्रीफली जानेंगे। नाउ व्यूअर्स वी डिस्कस important principle of Vygotsky in detail. The first one is MKO, the more knowledgeable other. MKO mainly
are things that have been helped in learning period. A person, a student, and anything that know a little thing, but they have to know more and more. With the help of MKO, they have been achieved their goal, because MKO providing you a better understanding, better knowledge, better intelligence, and better perspective. Like as MKO could be a teacher, adult, even a peer group, younger person, or even a computer. MKO could be anything, like as your teacher, like as your sibling, like as your socialization person, and like as your even computer. MKO will be support the learner, the accomplish a task within the learner on zone of proximal development, like as MKO providing you a perspective of ZPD after you have to complete your MKO, like as you have been doing right in the way of concern. अगर हम MKO को जाने तो MKO क्या हो गया? MKO वो होता है कि जैसे हमारे पास में कोई नॉलेज है ना, हम स्टूडेंट हैं, हमें कुछ पता है, ठीक है, उसको अगर हम ब्रीफली नहीं डिफाइन कर पाते हैं तो हम किसी टीचर के हेल्प से, या फिर हमसे कोई सीनियर स्टूडेंट होते हैं उनसे हम हेल्प ले सकते हैं, या फिर हमारे इवन पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं, या फिर हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कोई ऐसे पर्सन हो जिससे हम की हेल्प ले सकते हैं, जो कि हमारे एजुकेशन पर्सपेक्टिव में काफ़ी हद तक सहायक होता है। MKO कुछ भी हो सकता है, जैसा कि इसमें दिया भी हुआ, आपके टीचर, आपके इवन कंप्यूटर भी MKO हो सकता है। और MKO जो होता है ZPD के गोल में काफ़ी हद तक सहायक होता है, और इन दोनों के बीच में स्कैफोल्डिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, रोल होता है, जो कि इन दोनों के बीच में इंटरलिंक का काम करता है। इसके थ्रू जो होता है एक स्टूडेंट अपने नॉलेज को एक नई और क्या करता है, नई और प्रेरित करता है, या नई दिशा देता है, नया डायरेक्शन देता है। किसके हेल्प देता है? MKO के हेल्प से देता है। और आप सभी जानते भी हैं मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई नॉलेज है उसको हम क्या करेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। होता है ना, जिस तरीके से हम कंप्यूटर में कोई लैंग्वेज सीखते हैं, है ना, डिकोडिंग कोडिंग करते हैं, तो उससे पहले क्या होता है कि हम लोग सिंपल भाषा सीखते हैं, है ना, फिर उसके बाद उससे टफेस्ट भाषा सीखते हैं। किसके हेल्प सीखते हैं? किसी टीचर के हेल्प से सीखते हैं। उसी तरीके से जो है MKO हो गया एक हेल्पिंग सिनेरियो हो गया, जो कि आपके एजुकेशन पर्सपेक्टिव में काफ़ी हद तक सहायक होता है। इसलिए MKO काफ़ी इम्पोर्टेंट है वाइगोत्स्की के सोशल कल्चर थ्योरी में, क्योंकि वाइगोत्स्की साहब ने बोला है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही बच्चा अधिकांश अपना नॉलेज गेन करता है, जैसा कि MKO में भी दर्शाया गया है। मोर नॉलेजेबल अदर, यही हुआ कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम किसी से कुछ जान पाते हैं। नाउ व्यूअर्स, वी डिस्कस अबाउट टू मोर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लेब-वाइगोत्स्की थ्योरी। The first one is ZPD, zone of proximal development. Now viewers, we discuss about two more important principles of Leib-Vygotsky theory. The first one is ZPD, zone of proximal development. The difference between what a learner can do on their own, like as a learner have been achieved something by their own individual experience, and they have capable to do anything, but they have to know little bit knowledge about that, like as scaffolding, the process of introducing new idea with sufficient support so that the student can learn achieve on a level they would not be capable of their own, like as whenever a student achieve ZPD, like as gain knowledge through their own perspective of knowledge, after that they have to know about scaffolding, because scaffolding is the bridge of ZPD and MKO. Scaffolding will be providing you a knowledge of some data, like as you have to don't know, like as a student have to know something and they not be able to do something, like as they have to provide you in full detail, like as in briefly manner. Because in Leib-Vygotsky theory he have been developed in the social culture theory perspective. They have to believe a student have to gain knowledge by their own experience that have been achieved by social group. So it's a very important principle. Like as we discussed briefly about ZPD, scaffolding and MKO. Now we have discussed about three in some detail. जैसा कि हम जानते भी हैं कि ZPD वो होता है कि कोई लर्नर है, उसके पास में कोई नॉलेज है ना, जो कि वो अपनी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के द्वारा गेन किया है, लेकिन उसको उसके बारे में पूरी तरीके से पता नहीं होता है, तो क्या करेगा,
स्कैफोल्डिंग के हेल्प से उसको और अच्छे तरीके से जानेगा, फिर उसको क्या करेगा, अपनी नॉलेज को एक नई दिशा देगा, जो किसके हेल्प से होगा, जो कि MKO के हेल्प से होगा। तो वाइगोत्स्की के थ्योरी में ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं। नाउ वी डिस्कस थर्ड प्रिंसिपल ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी, दैट इज लैंग्वेज। Like as we saw, Vygotsky view language to be one of man's greatest tools। Vygotsky साहब ने कहा था कि लैंग्वेज जो होता है एक बहुत ही बड़ा क्या होता है, औजार होता है, जो कि हमारे सोशल कल्चर थ्योरी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, यानी हमारे सामाजिक परिवेश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और ये सिर्फ कम्युनिकेशन का ही काम नहीं करता, ये हमारे डेवलपमेंट में भी काफ़ी हद तक सहायक होता है। एंड द सेकेंड वन, लैंग्वेज अंटिल द एज ऑफ 2 इज जस्ट मीन्स ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, यानी जब तक हम 2 वर्ष की आयु में होते हैं, हमारी जो लैंग्वेज होती है वो दूसरे की भाषा पे निर्भर होती है, जो कि हम दूसरे से सीखते भी हैं। एंड द थर्ड वन इज लैंग्वेज बिकम प्राइवेट स्पीच फ्रॉम द एज ऑफ 3। इन्होंने बोला था लैंग्वेज जो होता है 3 वर्ष की आयु में प्राइवेट स्पीच में बदल जाता है। कहने का मतलब हुआ कि बच्चे खुद से बातें करते हैं, यानी जब बच्चे 2 वर्ष की आयु में होते हैं तो दूसरे की भाषा को सीखते हैं, लेकिन 3 वर्ष के बाद बच्चे उसी भाषा को सेल्फ इवोल्यूशन यानी आत्म केंद्रित के रूप में खुद जानने का प्रयत्न करते हैं, जो कि उनके लैंग्वेज विकास में काफ़ी सहायक होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज लेटर बिकम साइलेंट एंड इनर स्पीच एंड इंटरनल थॉट प्रोसेस। So let's discuss about third stage of language development, that is inner thought process or inner speech process. It's proceeding after private speech and it is the necessary key of language development, because after private speech you have to evolution your language perspective. That's the key of inner speech and inner thought process that will help you in language development according to Lev Vygotsky social culture theory। वाइगोत्स्की के लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो थर्ड स्टेज होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि प्राइवेट स्पीच के बाद हम अपने लैंग्वेज का सेल्फ इवोल्यूशन करते हैं, जो कि हमारे लैंग्वेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे जो भाषा विकास होते हैं उससे हमें एक इवोल्यूशन की आवश्यकता होती है, जो कि हम अपने इनर स्पीच के द्वारा ही कर पाते हैं, जो कि वाइगोत्स्की थ्योरी में बताया गया है। सो हमने जाना बच्चे में भाषा विकास किस तरीके से होता है और कितने स्टेजेस में होता है। सो आज आप लोगों ने जहाँ तक पढ़ा है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चर थ्योरी, इसका एक सेल्फ इवोल्यूशन करेंगे और दोबारा भी फिर से इसको पढ़ेंगे, और जहाँ कहीं भी क्वेरी आएगी आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और उसका मैं एक अलग से आप लोगों के लिए डाउट सेक्शन भी रखूँगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पूछिए तब मैं उसके लिए डाउट क्लास भी लगा पाऊँगा। सो आज की क्लास यहीं तक, बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार।